it's very important to actually start loving our country with action. And I think uh, Bharat Niti Samvad is just a example of doing the same. Evening, sir. Namaste. Uh, wait a minute. Namaste. So, very warm welcome to our keynote speaker, Shri Mukund Deshpande ji, for today's special episode. So, today's theme focuses on an issue central to India's inclusive growth story, ensuring accessible healthcare and sustainable livelihoods for the most vulnerable populations in rural slums and rural areas. We believe that real change emerges when innovations, empathy, and grassroots understanding come together, and that's exactly what today's keynote speaker embodies. So, we are deeply privileged to welcome Sri Mukunde Deshpande ji, an eminent innovator, entrepreneur, and thought leader, as today's keynote speaker. Sri Deshpande ji is the founder and managing director of JVD Metal Innovations Private Limited, where he has revolutionized the landscape of maternal child healthcare in India by establishing over 40 human milk banks, a model that has already benefited more than 3.24 lakh newborns, especially premature and low birth weight infants. His work has not only earned national recognition under the Make in India and MSME missions, but has also expanded globally through UK based collaborations. His expertise spans product innovations, public health technology, renewable energy, and intellectual property. But his real strength lies in applying this knowledge to grassroots concerns, making him an ideal speaker for today's discussion. Whether it is mentoring startups through NASCOM and NAFARI or shaping rural development through traditional knowledge systems, Mukherjee has remained committed to inclusive innovations and policy transformations. He currently serves in India national leadership roles across forms such as Global Indian Scientist and Technocrafts Forum. Session Mahotsav and Bharatiya Vigyan Sammelan actively working to bridge the gap between scientific thinking and community needs and government framework as well. His journey aligns seamlessly with BNSK's missions to craft evidence based, innovations driven, and culturally grounded policy dialogues. Today, we are excited to learn from his insights on how grassroots healthcare innovations, healing livelihood models, and blending with modern sciences can create replicable, impactful frameworks for India's development. On behalf of the entire BNSK team, we welcome you, Sir Mukund, sir, and welcome. Express our heartfelt gratitude for joining us today. We eagerly look forward to our individual address. Dhanyavad, sir, and welcome once again. I would like to add one more thing. Mukunji is also the founder for the Anugram Technologies Private Limited, which focuses on the rural cultural heritage preservation. So I request Mukunji to, for today's session, please enlighten the audience and us for this healthcare and livelihood for whole and grassroots solutions for the slums and rural India, so that we can talk about the urban-rural continuum by this topic. So please, sir, enlighten us for today's session, please. Namaste. Uh, I am feeling blessed to be present in such august gathering. All of you young leaders and truly representing the Naya Bharat, because it's very important to actually start loving our country with action. And I think uh, Bharat Niti Samvad is just a example of doing the same. Would like to share a small PPT with you. So I'm hopeful I can share the screen. Please, please. Can you see it? Yes, it's visible, sir. Okay, let's begin. So first of all, when this topic came to me, I was a bit curious about how exactly you want me to talk about it. But there are two important things which came to my mind. First is livelihood, and when we talk about it in the context of our cultural legacy. So I will talk in both Hindi and English if it suits all of you. Yes, it's. I think it is perfect for everybody.
So when we talk about India's legacy and its smart solutions which it has given to the different civil codes, नारद संहिता से लेके मनुस्मृति तक, और आज भी हमारा जो संविधान बना है उसमें भी जिस प्रकार की भावना है, यहाँ पे जैसा हम कह रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसी जो चाहिए, तो इंक्लूसिविटी की जो भावना है जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के माध्यम से पूरे दुनिया में लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारा सोच विचार थोड़ा सा अलग है। हम सिर्फ पूर्णत्व की तरफ जाने वाले लोग नहीं, हम समग्रता का भी विचार करते हैं। समग्रता जब मैं कहता हूं तो उसके ये मायने होते हैं कि हर एक छोटी से छोटी चीज भी उसको पूर्णत्व की तरफ लेके जाने का प्रयास सच्चे मन से, आत्मा से करना, जो भी हमारे पास संभव है उस प्रकार के रिसोर्सेस उसमें हमें लगाने हैं, इस प्रकार की सोच। तो गुड गवर्नेंस के बारे में हम सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे जिस प्रकार की पुरातन राज्य रजवाड़ों की भी जो बातें हम सुनते हैं, या हमारे यहाँ पे जिस प्रकार का अनुशासन और आत्मीयता का संगम हमारे यहाँ के प्रशासन में इसके पहले रहा है, हम सबने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में पढ़ा है कि वो कैसे एकदम जमीन से उठा के भी फलक पे पहुंचा दें अगर कोई उनका साथी उनके साथ है। तो इस प्रकार की एक अलग सोच, अलग प्रकार का प्रशासन, अलग प्रकार की संभावनाएं जिसमें हर कोई समाज का तबका शामिल हो सके, इस प्रकार से प्रशासन करना, ये हमारी खासियत रही है। अभी हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। अब गुड गवर्नेंस यही कोई परिसीमा नहीं है, हमारे यहाँ पे उसके बारे में जो सोचा गया है वो उससे भी परे, इट्स बियॉन्ड इट। इट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें प्रजा के हर एक गुट को लगे कि इस प्रशासन में, इस शासन में मेरा जो हित है, मेरा जो इंटरेस्ट है, उसकी पूर्ति हो रही है। अभी जब मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका हमारे आज के इस विषय से कैसा लेना देना है? सबसे पहली बात, हमने जब कहा कि लाइवलीहुड और ग्रास रूट के इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इसके बारे में बात करनी है, हेल्थ केयर के बारे में बात करनी है, तो एक तो बहुत अच्छी ये चीज है कि लाइवलीहुड और हेल्थ केयर को हम एक साथ देख रहे हैं। दूसरी बात ग्रास रूट की है। ग्रास रूट में हम कह रहे हैं कि स्लम अलग है, रूरल इंडिया अलग है, लेकिन मैं ही नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में भी लिखा है और सालों से जिधर भी फिलोसोफर हुए दुनिया में वो लिखते आए हैं कि मनुष्य एक समान ही रहता है, उसकी वृत्तियां वही है, उसके जो दोष है वो वही है, और हमारे पास भी जो त्रिगुण समझे गए हैं, तामस है, राजस है, सात्विक है, इन गुणों का मिश्रण मनुष्य है। जब हम पॉलिसी लेवल पे बात करते हैं तो हमको यह समझना चाहिए कि इस प्रकार का मनुष्य जो बना है, जिसमें इन्हीं तीनों तत्वों का एक कोई ना कोई संतुलन है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, तो ऐसे वक्त में वो स्लम में है या रूरल इंडिया में, ग्रामीण या देहाती है, इससे भी ज्यादा उसका जीवन यापन करते समय वो किस किस प्रकार की अपेक्षाओं से पूर्ण है, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात हम करते हैं लाइवलीहुड पे। लाइवलीहुड में यहाँ पे महाराष्ट्र में एक सिस्टम है जिसको हम स्वयंभू ग्राम, या जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा गांव जिसमें पूर्णतः वो स्वयं पूर्ण है, उसकी इकोनॉमी और इकोलॉजी ये एक साथ चलते हैं, और वो खुद के बाहर किसी भी दूसरे संसाधन पर अवलंबित नहीं है। उसमें धान की उपज हो, उसमें लगने वाले औजार हो, या जो भी रोजमर्रा की जीवन में उनको लगने वाली आवश्यक वस्तुएं हैं, उसका निर्माण भी वहीं पे होगा। इस प्रकार की रचना एक गांव में रही थी। यहाँ पे उसको 12 बलूतेदार ऐसा कहते हैं महाराष्ट्र में। और जब नीति की बात आती है तो इसमें आपको शायद पता ही होगा, आप में से बहुत सारे इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी भी है, कि बार्टर सिस्टम बहुत बड़े उसके मायने हमारे यहाँ पे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, अभी वैल्यू चेन जो बनी है, दैट एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज हैपनिंग एवरीवेयर। जैसे बार्टर में पहले गेहूं और आम का एक्सचेंज होता होगा, या श्रम और अनाज का एक्सचेंज होता होगा, वैसे ही इस नई दुनिया में जहां पे नए प्रकार के व्यवसाय आए हैं, वैल्यू एक्सचेंज का जो दायरा है वो अभी भी वैसा ही है। लेकिन जैसे जैसे कि श्रमों का और इस विकास के माध्यम से होने वाले कामों का नया नया रूप सामने आया है, ये वैल्यू एक्सचेंज की प्रक्रिया में थोड़ी ना थोड़ी तब्दीली आई।
सबसे पहले हम सोचते हैं कि स्लम एरिया में किस प्रकार से लाइवलीहुड को देखा जाता है। सीधी सी बात है, जहां जहां पे शहरीकरण हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, उस अर्बनाइजेशन में जिस प्रकार से वहां पे हैबिटेट हम जिसको कहते हैं वो डेवलप हुआ है, उसमें मनुष्य की जो जो उसकी भूमिकाएं है उसमें तब्दीली आई है। जो कि पहले ग्रामीण भागों में आज भी जिसका काम उसने करना है, इस प्रकार का फंक्शनलिज्म बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेड है। लेकिन स्लम्स, हमारे यहाँ पे एक नया प्रकार का जो इमिग्रेशन चला है उसका कारण है। तो कॉज और इफेक्ट में हम अगर सोचे, तो अगर हम ग्रामीण भारत के विकास पे पूरी समग्रता से विचार कर सकते थे और उसके बाद में उसको एक आकृतिबद्ध तरीके से अगर हम काम कर पाते थे, तो इस प्रकार का इमिग्रेशन शायद होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बहरहाल ऐसा भी हुआ है। आप सब लोगों ने फैसिलिटी मैनेजमेंट नाम की बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुना होगा कि जो शहरों में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, वहां में सिक्योरिटी से लेके इंजीनियरिंग स्टाफ तक, जो लोग ये मॉल, एरोड्रम्स, रेलवे स्टेशन, इनको मैनेज करते हैं, वहां के सिक्योरिटी, जिसको प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज कहते हैं, ऐसे अनेक नए प्रकार के जॉब्स लाइवलीहुड के तौर पे लोगों को उपलब्ध हुए। बार बार सोचने के बाद भी ये समझ में आ जाएगा हमारे कि जो वैल्यू एक्सचेंज यहाँ पे हो रही है वो मनुष्य बल और उसकी उपस्थिति इसके बारे में है। इसमें स्किल का भी बड़ा महत्व है। नए भारत में नीति के लेवल पे क्या सोचा गया कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी अगर आप ठीक तरीके से उसको अगर हम देखें तो किस प्रकार का फनल बनता है। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि अगर 50,000 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10वीं तक कितने हजार आएंगे, 10वीं के बाद 12वीं तक कितने हजार आएंगे, और धीरे धीरे उच्च शिक्षण के लिए कितने लोग जाएंगे। इस प्रकार का जब सर्वे सामने आया तो सहजता से ये बात समझ में आएगी कि शिक्षण हमारे यहाँ पे हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इसके बारे में और ज्यादा काम करने की और सोचने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षण उपलब्ध ही नहीं है, उसके लिए भी सरकार और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़ के काम कर रही है। लेकिन अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां और जो काम सीख रहे हैं जिससे उनका रोजगार चल सकता है, अगर वो आता है तो फिर सीखने की क्या आवश्यकता। या कई जगहों पे इस प्रकार से शिक्षण का महत्व अभी भी अधोरेखित नहीं हुआ है जिस प्रकार से होना चाहिए। ऐसे और इन्हीं कई ऐसे ही कुछ कारणों से हमारे यहाँ पे शिक्षण और रोजगार, इसका सीधा संबंध अभी तक वैसे जोड़ा गया नहीं। शिक्षण आपको रोजगार मिलने की गारंटी है क्या, ये मेरे मन में आया हुआ एक सवाल। तो जिस प्रकार से अर्बन एरिया में, स्लम्स में हमारे लोग रहते हैं, तो वहां के हमारे जो बंधु है वो किस किस प्रकार के कामों में खुद को उलझा हुआ देखते हैं या वो कुछ काम करते हुए देखते हैं, तो हमें ध्यान में आएगा कि पहले हमारे यहाँ पे जैसा गरीब तबका था, उसी प्रकार से मध्यम वर्ग, और मध्यम वर्ग के बाद जिसको अमीर कहते हैं, इस प्रकार का डिवीजन था। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हुआ है कि ये सब बातें आप जानते ही हैं, मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कि मुझे जो आगे कहना है उससे उसका संबंध स्पष्ट हो जाए कि गरीब और अति गरीब, ऐसे कुछ बातें बनी है। उससे भी ऊपर जाके मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग, और फिर अमीर और अति अमीर, ऐसे अलग अलग प्रकार की अभी कैटेगरीज बन गई। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है, जिस प्रकार की सेवाएं हमारे यहाँ पे स्लम में रहने वाले लोग दे सकते हैं या उनको देने के लिए जो भी आ, हमें जिसको कहते हैं कि एक प्रकार से सुविधा होगी, वो क्या हो सकता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से एक केस स्टडी के माध्यम से जानेंगे। Just a minute, okay? Sir, you are on mute. हेलो। Yes, yes, you are audible, sir. You are audible. हाँ, audible. Okay. So there was a program run by Government of India where they wanted to implement skill development through this facility agencies. So what they did, they asked these facility companies to come up with skill development programs and actually
offered them money to train the people. So now these people who were actually doing this work, they were trained, given those particular courses for some time, and after certification they had an ecosystem in which they could provide their services and also keep on promoting themselves to do various work as they went on to do work. इसमें एक एक फैसिलिटी एजेंसी के पास 10,000 25,000 इस प्रकार से लोग वहां पे काम करने लगे, और ये दायरा अभी बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हमने सुना कि संसद भवन में या राष्ट्रपति भवन में बीवीजी ग्रुप जो है उनके लोग वहां काम करते हैं, तो उनके स्किल डेवलपमेंट पे इन्होंने कोर्सेस रन किए, उन लोगों को ट्रेन किया। इनके जो मैक्सिमम लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो इमिग्रेट होके गांव से शहर में आए हैं या शहर में रह रहे हैं, और उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस माध्यम से तैयार हो गई। अभी इस प्रकार से जब अपॉर्चुनिटी बनती है तो सहजता से यह प्रश्न आता है कि अगर वो रूरल एरिया से आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है क्या? यहीं पे हमें पता चलेगा कि हमारी सामाजिक स्थिति, कौटुंबिक स्थिति और इन दोनों को लेते हुए इन सब हमारे बंधुओं को किस किस प्रकार से नवीनतम आयामों को सामने जाना पड़ा है। कहीं उनके रहने की जो शुरुआत थी, तो आप जानते हैं ग्रामीण भाग में बहुत सारा जो काम चलता है उसमें जैसे खेती बाड़ी का काम है, वहां पे जैसे मैंने कहा कि लोहार है, कुंभार है, या अभी हिंदी में शायद आप लोहार को लोहार ही बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो जो वहां पे काम आते हैं उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत सारे बड़े पैमाने पे वहां पे सड़क निर्माण का काम हुआ, कुछ जगहों पे डैम्स बने, यहाँ हर जगह पे लोगों ने काम किया। या बहुत सारे मानसून प्री मानसून वर्क जो होते हैं जिसको सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से चलाती है, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे हैविंग मनी इन कैश या पैसे हमारे पास होना, इसका महत्व इतना बढ़ता गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो अगर नहीं हो पा रही है, मैं देहात में रहता और नहीं हो पा रही है, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन देखा गया कि मैं वहां से उठ के अर्बन एरिया में चला जाऊं। और जब मैं जाता हूं तो मैं उतना शिक्षित नहीं हूं या मुझे उतनी आवश्यकता शिक्षण की नहीं लगी जब मैं देहात में था, और मैं जब शहर में चला गया तो इस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट मेरे काम में आया पिछले 10 सालों में। तो इस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट का मिशन भारत में बहुत बड़े मात्रा में चला। उसके आगे जाके क्या हुआ कि जैसे अभी हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर्स 10,000 डिक्लेयर किए गए, लेकिन उन 10,000 इंक्यूबेशन सेंटर्स को मैनेज करने के लिए कौन लोग चाहिए, उनका स्किल सेट क्या चाहिए, इस सभी चीजों का विचार हमको पहले से करना पड़ा। और उसका जो इम्पैक्ट जितना जैसा आवश्यक था उतना और वैसा उस समय पे नहीं आया, लेकिन धीरे 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 अभी हम दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल बनने जा रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन में जैसे स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा विचार हमको इसमें करना पड़ा कि जो गरीब अति गरीब तबके से या जिनका हैबिटेट स्लम्स में है, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जा सके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, और वो हो। वैसे ही जब हम सोचते हैं कि रूरल इंडिया में अगर इसी प्रकार को सोचा जाए तो ऐसी क्या तब्दीली है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ऐसा होता है कि आप रिसोर्सफुल है और आपको वो रिसोर्सेस इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करने आते हैं कि उसमें से जो एंटरप्राइजिंग होगी वो एक सस्टेनेबल बिजनेस बनेगा। इस प्रकार से ऐसे रूरल इंडिया में और अर्बन स्लम्स में भी क्या हमने ये सोचा है कि किस प्रकार के रिसोर्सेस अवेलेबल है और हम उनका कैसा उपयोग कर सकते हैं। धारावी एक बहुत बड़ा ऐसा उदाहरण है अर्बन स्लम का कि जहां पे जो लेदर वर्क का काम चलता है वो दुनिया भर में जाता है। इतना ही नहीं, आप अगर कोहिनूर देखने जाओगे लंदन में, तो वहां पे उनकी जो मेमेंटो जहां पे बेची जाती है, वहां पे बन के आई हुई उसकी प्रतिकृति ये भी मेड इन इंडिया है, और उसका बहुत सारा जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे अर्बन स्लम्स में होके वहां पे आया। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि सभी को भारत में समान संधि अभी मिल सकती है या मिल रही है? तो इस अपॉर्चुनिटी को जो मैं यहाँ पे विशेष रूप से बोलना चाहूंगा कि रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्स एनालिसिस, और इस रिसोर्स को एनालिसिस करने के बाद हम किस प्रकार का नवाचार या इनोवेशन लाके हमारा रोजगार खुद ब खुद कमा सके, इस प्रकार का विचार अगर सभी करने लगे
तो मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि ये इमिग्रेशन बहुत बड़े मायने में कम हो जाएगा। दूसरी बात ऐसी है कि हम कब तक बस एक मार्केट बन के रहें। क्या भारत को दुनिया भर के लोग जिस प्रकार देखते हैं कि एक बड़ा मार्केट है, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ का जो भी माल या प्रोडक्शन है हम यहाँ पे जाके बेच सकते हैं। हम कभी दुनिया की तरफ इस नजर से देखेंगे क्या? और इसका भी उत्तम उदाहरण है कि जैसे ग्रामीण भाग में जहां पे रिसोर्सेस अलग अलग है, और भगवान की कृपा से भारत भर में हमारे पास बहुत बायोडाइवर्सिटी है, तो ऐसे कितने प्रकार के रिसोर्स एनालिसिस हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज किए हैं क्या? हमने वहां पे सब डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्कल्स में किए हैं क्या? और अगर नहीं किए हैं तो क्या हम हमारे संसाधनों को पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या? इसलिए ये जो लाइवलीहुड है, जो समस्या, अभी हम अर्बन स्लम्स और रूरल को अलग अलग करके देख रहे हैं, लेकिन अर्बन स्लम्स ये सबसेट है रूरल इंडिया का, और ये जो एक्सपीरियंस दोनों को क्वालिटी ऑफ लाइफ का आ रहा है, उसमें कई मामले में थोड़ी ना थोड़ी समानता है। और इसका सॉल्यूशन भी इसी में है कि हम हमारे यहाँ के रिसोर्स एनालिसिस करने के लिए एक प्रकार की नई पहल करें, जिसमें अगर मेरा गांव उसमें कोई हेरिटेज है, अगर मेरा गांव उसमें किसी प्रकार का बायोडाइवर्सिटी की कोई संभावना है कि अलग प्रकार का कुछ उत्पाद वहां पे होता है, या मेरे गांव में ऐसे आर्टिसंस है कि जो उनकी कला के माध्यम से ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट्स बना सकते हैं कि जो दुनिया भर में लोग उनका स्वीकार करें, या मेरे गांव में इस प्रकार के व्यंजन बनते हैं कि मैं चाहूंगा कि दुनिया भर के लोग उसको चखे और वो उनको पसंद आए। ऐसे कुछ मसाले बनते हैं क्या? ऐसे किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिसेस है कि जहाँ पे जैसे अभी मुल्तानी मिट्टी के, जैसे हमारे जालना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कि वहां की मिट्टी को समझा जाता है कि वो मिट्टी चेहरे पे लगाने से आप ज्यादा खूबसूरत दिखोगे, या जिसको हम कहते हैं कि एक प्रकार का ब्यूटी प्रोडक्ट करके उसको देखा जा सकता है। तो ऐसे उदाहरणों से, जैसे अभी जीआई इंडिकेशन पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन जीआई इंडिकेशन मिलने के बाद भी जो इकोसिस्टम वहां पे बनी है उसके स्केल अप के लिए क्या, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। तो लाइवलीहुड के बारे में रिसोर्स एनालिसिस के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन वैल्यू का, और ये वैल्यू की डिलीवरी, इसके लिए जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इकोनॉमी का जो मेल हम कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे आए। ऐसा मुझे लगता है कि अर्बन स्लम्स और रूरल, ये दोनों को एक तरीके से अगर हम अप्रोच कर पाए, और वहां पे हमारे जो भी लोग बसते हैं उनके साथ उनका हैंड होल्डिंग करके अगर हम ये कर पाए, तो ज्यादा से ज्यादा मूल्यवर्धन हम कर पाएंगे उनके जीवन में भी और हमारे देश की प्रगति में भी। अभी अगर एक स्वस्थ समाज तैयार हो जाए, जो उन्नत है, जो समृद्ध है, और उस समाज में आने वाले संकट, उस समाज पे आने वाले आरोग्य के संकट, या उस समाज की एक स्वस्थ रहने की दिशा में उसका अग्रसर होना, ये सब हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। लाइवलीहुड कमाने के लिए आप सभी जानते हैं कि कॉम्पीट करना पड़ेगा, यहीं पे नहीं दुनिया भर में कॉम्पीट करना पड़ेगा। और इस प्रकार का क्या हमारा आने वाला नया भारत का नागरिक तैयार है क्या? और इस तैयारी का हमें बहुत शुरू से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि हेल्थ केयर के बारे में जब जब सोचा जाता है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है न्यूट्रिशन से। हमारे यहाँ पे जो सवाल है, बहुत गहरे सवाल है। पहला, जैसा हम जानते हैं, बहुत बार सुन भी चुके हैं, माल नरिशमेंट हमने सुना है, माल न्यूट्रिशन सुना है, लेकिन एक उससे भी ज्यादा गहरा, और जिसको हम थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, वो है ग्रोथ स्टंटिंग। ग्रोथ स्टंटिंग क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, आइदर प्री मैच्योर बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, और वेरी लो बर्थ वेट बेबी, और बेबी सिक है, या किसी भी कारण से उसकी माँ उसके पास नहीं है, तो जो उनके डेवलपमेंट डेज हैं उसमें ठीक तरीके से न्यूट्रिशन न मिलने के कारण, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट को बाधा आती है, उसी प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, यानी मेंटल डेवलपमेंट को भी बाधा आती है। तो क्या हो जाता है कि वो ग्रोथ स्टंट हो जाती है। उनकी ये ग्रोथ स्टंटिंग हमारे लिए भविष्य में आने वाले नए नागरिकों को दुनिया में स्पर्धात्मकता से वंचित कर देती है। यानी हमारे यहाँ पे जो बच्चे ग्रोथ स्टंटिंग का शिकार है, माल नरिशमेंट का शिकार है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसमें की बच्चियां ठीक तरीके से स्वस्थ जीवन न बिता पाएगी, ना उनको जब मातृत्व साधना करने का वक्त आएगा उसमें भी उसका बुरा परिणाम होगा।
इसी प्रकार से अगर वो कुछ काम करना चाहती है स्किल के माध्यम से, बौद्धिक तौर पे या किसी भी प्रकार का काम करती है, तो उसके लिए भी एक आवाहन वहां पे तैयार हो जाएगा। इसलिए हेल्थ केयर को जब जब हम देखते हैं तो उसको हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और दूसरा जो है वो हेल्थ सेंट्रिक हेल्थ केयर, और तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं इंटरवेंशनल हेल्थ केयर। ये तीनों प्रकार का हमको ठीक से विचार करना पड़ेगा। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या है कि जिसमें हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ ही रहे और उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहे हैं जो लेने में बहुत बार चूक हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे न्यूट्रिशन में अभी एक बहुत प्रकार का डिप्लीशन है। जिस प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें लगते हैं वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाते। इसीलिए हमारे फूड हैबिट्स को तो हम बाद में उसके लिए बात करेंगे, लेकिन जो फूड अवेलेबल हो रहा है उस फूड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने और किस प्रकार के हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी सभी के पास नहीं। दूसरा, जैसे हेल्थ सेंट्रिक है कि हम फिटनेस को कितना, भी खेलो इंडिया का इतना बड़ा अभियान चला और रन फॉर यूनिटी होता है हर साल। हमारे यहाँ के समाज में फिटनेस को लेके इतनी जागरूकता है क्या जितनी और पश्चिमी समाज में देखे जाती है? तो शायद इस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शहरों में ऐसे आयोजन होते हैं कि जिसमें जो लोग मैराथन रन करते हैं, साइक्लोथॉन करते हैं या अलग अलग, तो समाज में एक लहर निकल पड़ी है कि हम फिजिकली फिट हो जाए। और तीसरा जिसको हम इंटरवेंशनल हेल्थ केयर कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी यानी जो जिसको हम कहते हैं कि व्हाट इज द ट्रेजेडी इन हेल्थ केयर, कि अगर घर में कोई एक बीमार हो जाए और उसको बहुत सारी हमको दवा दारू या जो भी हेल्थ केयर उसके लिए करना पड़ेगा, अंततोगत्वा उस घर की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी उसमें क्या कहते हैं कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और इसमें तो बहुत बड़ी भावनाएं भी हैं कि अगर कोई उम्र दराज लोग हैं तो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए मैं कहीं से भी पैसा लाऊंगा, मैं कर्जे निकालूंगा, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको पूरी तरह से ट्रीटमेंट दे पाऊं। इस प्रकार की पूरी जो परिवार है उसकी भावना होने के कारण बहुत सारे लोग इस ट्रीटमेंट में अपनी जमा पूंजी गवा बैठते थे। तो एक प्रकार से हेल्थ केयर में इंटरवेंशनल हेल्थ केयर की बात आती है तो हमारे यहाँ पे क्या तब्दीली की गई? हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत नाम से जो एक स्कीम लॉन्च की गई, और ये स्टेट हेल्थ, ये स्टेट इशू होने के कारण अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग नामों से कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स आई है जिसमें 5 लाख तक के हेल्थ बेनिफिट्स को ले सकते हैं। तो एक प्रकार से जैसे पैसे कमाना लाइवलीहुड के माध्यम से ये इंपॉर्टेंट है, वैसे वो हेल्थ केयर करते हुए उनको गंवाना नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी दोनों चीजों के बारे में बात करते करते मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी जितनी इंपॉर्टेंट है, वो इंक्लूसिविटी कोई आपको इंक्लूड कर रहा है नीतिगत तौर पे या चाह रहा है कि आप उस पर इंक्लूड हो, ये एक प्रकार है। और उससे भी जाके पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेशन कैसा होगा, हर एक को उसमें आने का मौका मिलेगा क्या? और उनको पार्टिसिपेट करते हुए वो क्या कर सकते हैं? इसीलिए लाइवलीहुड में या हेल्थ केयर में ये जो दोनों विषय समाज के सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से इन दोनों विषयों के लिए समाज की सजगता और उसका सहभागिता, उसमें पार्टिसिपेशन, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसका उदाहरण क्या है? हमने जब मदर्स मिल्क बैंक का काम चालू किया 10 साल पहले, तो हमको ऐसा ध्यान में आया कि 1989 में एक मदर्स मिल्क बैंक बनी है मुंबई में, सायन अस्पताल में। और उसके बाद 25 सालों तक कुछ भी काम इस क्षेत्र में हुआ नहीं। और धीरे धीरे हम जैसे उसमें और काम करते गए तो हमको ध्यान में आया कि हमारे यहाँ पे वर्किंग मदर्स, इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर जैसे आप जानते हैं कि पहले मैटरनिटी लीव ऐसी कोई संभावना नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोग सजग हुए विषय के बारे में, मैटरनिटी लीव 6 महीने तक वर्किंग मदर्स के लिए है, लेकिन फिर भी कई जगहों पे उनका उसको रोजगार जो कहते हैं वो रोजगार इतना क्रिटिकल है कि उस माँ को काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन सभी केसेस में या जहां कहाँ पे भी हाई अथॉरिटी में माए है कि वो जाती है, उनको काम करना पड़ता है। तो जिस भी प्रकार से आप देखें तो मातृत्व साधना में जिस प्रकार से पूर्ण रूप से माताएं अपने बच्चे के साथ उपलब्ध रहती थी, उस प्रकार की संभावनाएं अभी इस जमाने में थोड़ी कम हुई। और भी क्या क्या हुआ है, तो बहुत सारी जगहों पे लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारी माताओं को जो स्वाभाविक तौर से
जिस प्रकार के बच्चे का जन्म होना चाहिए, उस जन्म की प्रक्रिया है, या जिस प्रकार से उसको स्तनपान होना चाहिए, उसकी जो प्रक्रिया है, या जैसे मैंने कहा कि हेल्थ केयर के बारे में, इवन अबाउट द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हमारे यहाँ पे थोड़ी सजगता और आवश्यक है। तो ऐसी माताएं कि जो नहीं जानती है कि किस प्रकार का पोषण उनको चाहिए, जिसके माध्यम से वो अपने होने वाले बच्चे का भरपूर पालन पोषण कर सके और उसकी फिजिकल और मेंटल इन दोनों प्रकार की हेल्थ पर कोई असर उनको न्यूट्रिशन की कमी के माध्यम से या नरिशमेंट की कमी के माध्यम से ना हो। इस प्रकार की मालूमात न रहने से बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है दुनिया भर में। जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल नंबर 3 जो है, गोल नंबर 3.1, 3.2 एंड 3.4, इसमें मदर एंड इन्फेंट केयर के बारे में बात की गई है। आप ये भी जानते हैं कि जब जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आती है किसी देश में, तो जो इंडेक्स देखे जाते हैं, उन इंडेक्स में एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1000 इन्फेंट्स के पीछे कितने इन्फेंट मर जाते हैं किसी न किसी कारणवश, और ज्यादा करके ये कारण उनको न्यूट्रिशन देते समय या ब्रेस्ट फीडिंग करते समय उनको जो उपलब्ध होने वाला माँ का दूध है उसकी कमी के कारण ये होता है। फिर अलग अलग जगहों पे, जैसे 2015 के बाद जब हमारे जगत प्रकाश जी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर बने भारत के, तो उन्होंने कुछ नीतिगत निर्णय लेते हुए मदर्स मिल्क बैंक को देश भर में हर जिले में ये होनी चाहिए, इस प्रकार का काम शुरू किया। उसके लिए बजट सैंक्शन किया, उसके लिए लोगों से बात की, लेकिन ये इतनी सहजता से हुआ नहीं, क्योंकि 25 सालों में इस पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ से कुछ काम हो नहीं रहा था। ये आप समझिए, दिस इज नॉट इंटरवेंशनल हेल्थ केयर, दिस इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और प्रिवेंशन के बारे में हमारे यहाँ पे जब हम काम करते हैं, तो जितना महत्व क्रिटिकल हेल्थ केयर को दिया जाता है या इंटरवेंशनल हेल्थ केयर को दिया जाता है, उतना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को अभी नहीं दिया जाता है। तो इसमें काम करते हुए हमें ऐसा समझ में आया कि डॉक्टर्स इसमें जो न्यूनेटोलॉजी जिनको कहते हैं कि वो इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो फील्ड है बड़ा निश फील्ड है, उसमें होने वाला यह काम है, ये लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं। इसीलिए हमने पहली बार हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो भी एनजीओ इसमें काम कर रहे थे, जो कहते हैं कि हम, बहुत सारी पश्चिम देशों की ऐसी एनजीओ है जो खुद को वो कॉल देमसेल्फ एज दी, क्या कहते हैं कि वही एक योग्य सोर्स है भारत के बेसलाइन डेटा के लिए हेल्थ केयर के बारे में। और वो हमारे यहाँ पे लोगों को अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस करके, अलग अलग पेपर पब्लिश करके बार बार ये बताते रहते हैं कि हमने ये सर्वे किया है और इसके माध्यम से आप ऐसा निर्णय कीजिए। अब ये जब ऐसा होता है तो उसमें हमारे यहाँ का, हमारे सिविल सोसाइटी का रोल ये बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। तो हमने शुरुआत करते वक्त हेल्थ केयर में सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया मदर्स मिल्क बैंक काम के बारे में। उसमें आरोग्य भारती, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऐसे सब लोगों को एक साथ लेकर उनसे हमने ये बात की कि मदर्स मिल्क बैंक ये ब्रेस्ट फीडिंग सेंट्रिक है, ये हमारे यहाँ पे कम हुए ब्रेस्ट फीडिंग रेट को सुधारने के लिए एक बहुत ही सोचा हुआ समझा हुआ ऐसा कदम होगा। और हमने उसमें सिविल सोसाइटी को सम्मिलित कर लिया। सिविल सोसाइटी के सम्मिलित होते ही इसकी चर्चा उन लोगों तक भी जाने लगी जो न्यूनेटोलॉजिस्ट नहीं है, जो सीधे तौर पे माताओं और बच्चों को या इन्फेंट्स को जो प्री मैच्योर है उनकी शुश्रूषा में काम नहीं करते हैं, उनकी हेल्थ केयर में वो केयर गिवर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसा पता चला कि ये विषय बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। हमने एक नेटवर्क ऑफ ह्यूमन मिल्क बैंक्स नाम से एक बड़ा आयोजन किया, जिस कॉन्फ्रेंस में हमने बहुत सारी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम करती है उनको पहली बार एशिया में एक जगह पे सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हमने पुणे में यहाँ पे की। और वहां पे ये चर्चा की कि हर एक देश के लिए कोई ना कोई गाइडलाइंस है इस विषय को लेकर। और हमारे पास, हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ पे जनसंख्या इतनी है, और हमारे यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी ज्यादा है। और ये बर्थ रेट में अभी जो जिसका परसेंटेज बड़ा है वो प्री मैच्योर बर्थ्स का है। हमारे यहाँ पे टर्शरी केयर सेंटर्स भी कम है, बहुत प्रकार के अलग अलग जिसको क्या कहते हैं कि टर्शरी केयर सेंटर में चैलेंजेस है। और ये सब होते हुए हम अगर सिविल सोसाइटी को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे तो कभी भी ये विषय बढ़ेगा नहीं, इसका कोई स्केल अप होगा नहीं, ये लोगों तक पहुंचेगा नहीं। तो एक बहुत बड़ा ये इवेंट करने के बाद हम उसमें रुके नहीं, हमने उसके
NIN में, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उनके साथ भी बात की। और आपको अगर याद होगा तो पोषण नाम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम माननीय पंतप्रधान जी ने लॉन्च किया। और उसमें जो फर्स्ट 1000 डेज जिसको कहते हैं, वो फर्स्ट 1000 डेज में किस प्रकार का आहार, आचार और जिसको क्या कहते हैं विहार करना चाहिए माताओं ने, और बच्चों की क्या चिंता करनी चाहिए, इसके बारे में एक बहुत बड़ा अभियान चला। उसी के दौरान यूनिसेफ और भारत सरकार ने बंबई में एक सम्मिलित आयोजन करके पूरे भारत ने फर्स्ट गोल्डन आवर, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद में पहले 1 घंटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। इस प्रकार से सब लोगों ने इसका पुरस्कार किया कि ये हमको करना चाहिए, और सबने उसको स्वीकारा। और अब जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स है, जहां जहां पे नर्सिंग होम्स हैं, वहां पे हर जगह पे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो ये फर्स्ट गोल्डन आवर को ऑब्जर्व करते हैं और ये चिंता करते हैं कि उस बच्चे को जल्द से जल्द उसकी माता का दूध मिले। इससे क्या हुआ, इससे इम्यूनिटी में बढ़ोतरी आई, इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ, ग्रोथ स्टंटिंग को एक करारा सोल्यूशन वहां से मिला। और आपको जान के अचरज होगा कि ये क्यों करना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा, हमारे पास टर्शरी केयर सेंटर्स कम है। टर्शरी केयर सेंटर्स में जहां पे NICU जिसको कहते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे हर तबके के बच्चे को जब वो अत्यावश्यक उसको यानी क्रिटिकल केयर की जरूरत है तो उसको वहां पे रखा जाता है। अभी मैं एक हैदराबाद का उदाहरण देता हूँ, नीलोफर अस्पताल नाम के वहां पे एक सरकारी अस्पताल है, और उसकी मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में बहुत सारे वार्ड है, NICU वार्ड। तो मैं वहां पे हमने वहां पे एस्टेब्लिश किया मिल्क बैंक। वहां पे मैं जब गया था पहली बार, तो मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे लोग NICU में कैसे हो सकते हैं, ये तो क्लीन एरिया है। लेकिन उस क्लीन एरिया में बात ऐसी थी कि बेड एक था, एक बेड पे वहां पे ये सोचना आवश्यक है कि एक बार एक बच्चा वहां पे रहेगा, और ऐसे 3 या 4 बेड के पीछे एक नर्स रहेगी। इस प्रकार से वहां पे सुविधा होनी चाहिए थी। लेकिन वहां पे जो स्थिति थी, एक बेड पे 4 बच्चे थे, और एक वार्ड में 12 जो बेड्स थे उसमें एक नर्स थी, और बहुत सारे लोग थे। उसको क्लीन एरिया कहते हैं, इन्फेक्शन ना हो इसलिए। उस प्रकार की कोई संभावना वहां पे नहीं दिख रही थी। तो हमने पता किया कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि एक तो बेड्स कम है और आवश्यकता ज्यादा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वहां पे एक ही नर्स होने के कारण जो पेरेंट अंदर आते हैं वो कुछ चिंता करते हैं, वो देखते हैं बच्चों की तरफ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हर एक बच्चे का पेरेंट आ जाए तो यहाँ पे 12 बेड्स पे हर एक पे 4 है, ओवर ऑक्यूपाइड है, वो उतने उनके पेरेंट्स आएंगे, और एक जन ज्यादा क्यों है हर बच्चे के पीछे। तो उन्होंने कहा पे यहाँ पे अगर कुछ काम गिरता है, कुछ बाहर से लाना है, तो जो अंदर मौजूद है अगर माँ है तो उसके साथ में कोई और चाहिए कि वो जाके लेके आए, क्योंकि हैदराबाद में बेबी थेफ्ट का बहुत बड़ी मात्रा में काम चलता है। ये सब सुन के तो मैं ये समझ गया कि ये काम आसान नहीं है, और हमारे यहाँ पे प्रोजेनी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जब हमने आगे वहां पे काम बढ़ाया तो धीरे धीरे वहां पे कुछ तब्दीली आई, लेकिन उसके बाद ये चित्र सामान्य रूप में बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स कम है। फिर हम जब आगे आगे काम करते गए तो सिविल सोसाइटी का इसमें जो रोल है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। वहां पे नीलोफर में जो मिल्क बैंक बनाई है वो एक सुशेना हेल्थ फाउंडेशन करके है, जिन्होंने CSR लोगों से लिया और वहां पे मिल्क बैंक बनाई, और कई जगहों पे उन्होंने बनाई। इसके बाद में रोटरी इंटरनेशनल के माध्यम से भी भारत में कई बड़ी मिल्क बैंक्स बनी है। धारवाड़ में है, पुणे में है, हुबली में है, मंगलोर में है। और एक तो बहुत ही मैं बताना चाहूंगा कि अस्पतालों में इन्होंने बनाया, अस्पतालों के साथ। लेकिन भावनगर गुजरात एक ऐसा उदाहरण है कि जिनके जो वो लोग जो रोटरी क्लब में काम करते हैं कई सालों से, पारिवारिक, वो सब उनके एक परिवार के जैसे वहां के भावनगर के लोग रोटरी के काम करते हैं। उन्होंने एक स्टैंड अलोन मिल्क बैंक बनाई, और वो स्टैंड अलोन मिल्क बैंक वहां के सभी NICU को मिल्क प्रोवाइड करती है। वहां की सब जो माताएं हैं वो डोनेट करती है, आगे होके आगे आके खुद ब खुद डोनेट करती है। उस जिले के सभी आशा वर्कर्स को हमने ट्रेनिंग दी उनके साथ, और ये आशा वर्कर्स उनके लिए काउंसलिंग रोज का काम है, लेकिन इस प्रकार से मिल्क डोनेशन के लिए काउंसलिंग वो पहली बार सीखे। हमने भी कुछ इंक्रीमेंटल इनोवेशंस किए, तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हमको रिकॉग्नाइज भी किया। जैसे हम जानते हैं, इनोवेशन के बारे में भी बात करेंगे। एक रहता है एब्रप्टिव, एब्रप्टिव नहीं, एक इनोवेशन जो रहता है वो इंक्रीमेंटल रहता है, और दूसरा जो होता है वो अ, पूरी तरह से नया है। उसमें पुरानी कोई बात नहीं, उसमें नॉवेल्टी ज्यादा है, नॉन ऑब्वियसनेस वो है। तो ये इनोवेशन ऐसे 2 प्रकार के हैं। तो हमने इंक्रीमेंटल इनोवेशन किया,
और जो काउंसलिंग की जाती है वो काउंसलिंग सिर्फ मदर के लिए न करते हुए हमने उनके परिवारों को भी उसमें सम्मिलित किया। और जैसे ही ये शुरुआत हुई, अभी मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि साल भर में हमारे जहां जहां पे इंस्टॉलेशन है वहां पे जो काउंसलिंग होती है उसके माध्यम से हम सालाना तकरीबन 20 लाख लोगों को इस पूरे विषय के बारे में अवगत कराते हैं। और वो माता जब उसके बच्चों I think there is a network issue. Just wait a minute. Just wait a minute, please. He's reconnecting in a minute. Just be on the like session, please. He's connecting within a minute. Okay. Am I? Is my screen visible to you? Yes, screen is visible, sir. You are also visible, and please, sir. Voice is there. Yeah. So sorry for this. No issue, sir. No issue. We understand. So सिविल सोसाइटी का रोल जैसे जैसे शुरू हुआ इस मिल्क बैंक में, वैसे वैसे काम बढ़ता गया है। बहुत सारी जगह पे सीएसआर के लिए भी लोगों ने इसको स्वीकारा है और एक आंदोलन के रूप में ये उभर के सामने आया है। इसमें बहुत सारी चीजें नई तौर पे शुरू हुई, जैसे मिल्क बैंक मैनेजर नाम का कोई पोजीशन पहले अवेलेबल नहीं था, वो पूरे देश भर में हुआ है। लैक्टेशन कंसल्टेंट्स और लैक्टेशन काउंसिलर्स, इनका जो रोल था वो बहुत सीमित था, लेकिन मदर्स मिल्क बैंक आने के कारण, जिसको हमारे सरकार ने कॉम्प्रहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर ऐसा उसका नामकरण किया है, और जिस प्रकार की गाइडलाइंस को लेके सरकार सामने आई है उसी में आगे जाके उन्होंने अभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए भी गाइडलाइंस को पब्लिश किया है। उसके कारण अभी जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल है, जो वहाँ पे हाइजीन वर्कर का रोल है, नर्सेस और मिडवाइव्स जो है उनका जो रोल है, इस सबको एक प्रकार का महत्व प्राप्त हुआ है। और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एक ऐसी ओढ़ लगी है कि वहां पे मदर्स मिल्क बैंक होनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ है। और सबसे जो अहम बात इसमें है कि जैसे माताएं तो मिल्क डोनेट कर रही है, लेकिन ये जो मिल्क बैंक में प्रोसेस होता है और जो बच्चों को दिया जाता है, उसके एवज में कोई पैसा नहीं लिया जाता। हमारे भारत में माता का दूध बेचना या खरीदना, ये एक एक्ट के माध्यम से उस पे बंधन है, वो नहीं कर सकते। तो हर मिल्क बैंक जहाँ पे जाने वाला हमारे सोसाइटी का कोई भी बच्चा हो, आने वाला हमारा सिटीजन हो, वो उसका आर्थिक और सामाजिक स्तर, इसका कोई असर उसको ये माँ का दूध, खुद की माँ का या किसी जिसको कहते हैं कि जिस माता ने दान किया हो कोई दूसरी माँ का दूध मिलने में, उस बच्चे को पूरा पूरा अवसर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अभी तो हमने तकरीबन 45 ऐसे सेंटर्स देश भर में किए हैं, और हमारे अलावा भी कुछ लोगों ने किए हैं, और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी सब जिला अस्पतालों में नहीं आया है, जहाँ पे ज्यादा और जरूरत है और डेंस पॉपुलेशन के स्टेट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहां पे भी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे इस पे काम अभी चल रहा है, और धीरे धीरे ये आगे आएगा। तो एक उदाहरण है जो हमारा काम है, उसको लेके मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने बताया। एक जोधपुर का भी इसमें मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ऐसा कब कब होता है कि माताओं का दूध अवेलेबल नहीं है, तो उसमें एक सबसे ट्रेजिक
सिचुएशन है कि माता अवेलेबल नहीं है, आइदर बिकॉज शी इज नो मोर, या फिर ऐसा है कि कोई सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है लेकिन उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, इसलिए उसको डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे लाया गया है, या ऐसा है कि माता जो है वो बच्चे को जन्म देने के बाद शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू लैक्टेट समहाउ बिकॉज ऑफ हर हेल्थ प्रॉब्लम्स और समथिंग। तो इन सभी केसेस में ये बड़ा चैलेंज है कि वो बच्चे को सही न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए। जोधपुर में एक लव कुश अनाथालय नाम की जगह है जो बहुत सारा काम करते हैं। उनके पास एक वेट सेंसर बिठाया हुआ, जिसको क्या कहते हैं, पालना है बाहर रखा हुआ, कि जिसमें कोई भी एनोनिमसली बच्चा छोड़ के जा सकता है। हम जब उनके साथ हमने काम किया तो हमको समझ में आया कि राजस्थान की ये बात है। उनके पास 266 गर्ल्स इन हाउस थी और 2 बॉयज इस मात्रा में वहां पे उस अनाथालय में, और लोग 2 दिन का, 2 वीक्स का, इस प्रकार के बच्चे वहां पे छोड़ के जाते। अब इसकी वजह से क्या होता है कि उनको बड़ी समस्या थी कि मेरे पास अगर 2 दिन का बच्चा आता है तो मैं उसको कैसे दूध पिला सकता हूँ। इसलिए वहां पे परिहार जी करके है जो ये सब प्रकल्प चलाते हैं, उन्होंने अनाथालय के अंदर मिल्क बैंक, इस प्रकार का ये पूरे एशिया में पहली बार इस प्रकार का वो प्रोजेक्ट बना। और मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि वो बोर्ड पे लिख देते थे कि आज हमारे यहाँ पे बच्चों को जरूरत है, आप आके दुग्ध दान कीजिए। और जोधपुर के आजू बाजू में रहने वाले वहाँ के सब लोग बड़े पैमाने पे मदर्स वहाँ पे आके डोनेट करती थी मिल्क, जो वहाँ पे प्रोसेस करके बाद में अनाथ बच्चों को दिया जाता था। और उनकी एक मान्यता थी कि अगर मैं ये दूंगी तो मेरे बच्चे को बरकत आएगी, उसके लिए ज्यादा मिल्क आएगा और जिंदगी भर वो खुश रहेगा, उसको दुआएं मिलेगी। ऐसे एक प्रकार से श्रद्धावान होके वहां पे मदर्स आके मिल्क डोनेट करती थी। तो सिविल सोसाइटी आने के कारण इस प्रकार के जो अलग अलग विचार प्रवाह है वो इसको पुष्ट करते गए, और आज हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स में भारत पहले से ज्यादा आगे है, 95% के आगे अभी हम जा रहे हैं। और ये बस यहीं पे नहीं है कि जहाँ पे मिल्क बैंक से, ऐसे ही नहीं, मिल्क बैंक के माध्यम से जो अवेयरनेस हो रहा है, लोगों को ये पता चल रहा है। माताओं को भी जब काउंसलिंग किया जाता है तो उनको ये भी कहा जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की जो संभावना है वो ब्रेस्ट फीडिंग से या मिल्क डोनेशन से कम होगी। तो उसके कारण भी अलग अलग इसके जो एडवांटेजेस है और हेल्थ बेनिफिट्स है, उसके लिए भी लोग वहां पे आ रहे हैं। जयपुर का एक उदाहरण बता के मैं मिल्क बैंकिंग की बात रोकूंगा उसको। वहां के जेके लोन अस्पताल में महिला चिकित्सालय नाम का एक अलग थलग ऐसा महिलाओं और बच्चों के लिए उनका एक ब्लॉक बना हुआ है। और उस ब्लॉक में जब मिल्क बैंक बनी तो वो ऑस्लो यूनिवर्सिटी के साथ ने वहां पे बनाई। ऑस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे के लोग हैं और ये कई सालों से हमारे यहाँ के हेल्थ केयर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, नर्सेस एक्सचेंज से लेके तो मिल्क बैंक जैसे प्रोजेक्ट बनाने तक। उन्होंने वहां पे जब काम करना शुरू किया और हमने जैसे जैसे वो पूरा सेटअप वहां पे लगाया, तो हमको पहले दिन ऐसा लगा कि माताएं क्यों आएगी डोनेशन को, कैसे आएगी, और ये जो काउंसलिंग कर रहे हैं इनकी भाषा भी अलग है, ये कैसे समझेगी। उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग दी और वहां की जो लोकल नर्सेस है उन्होंने मदर्स को जाके बताया। और जो ब्रेस्ट पंप्स होते हैं उसके माध्यम से जो मदर्स जिनको बहुत पेन है क्योंकि बच्चा एनआईसीयू में है, वो दूध नहीं पी रहा है लेकिन दूध बन रहा है, वो बाहर ना आने के कारण उसकी गांठें हो जाती है और उसका बहुत दर्द होता है। तो ऐसी मदर्स को लाके जब उन्होंने वहां पे एक्सप्रेशन एरिया में उनको ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल करने को दिए, जिसके कारण उनको बहुत उस तकलीफ से, उस समस्या से छुटकारा मिला। और जैसे जैसे बात फैली तो दूसरे ही दिन से बहुत सारा डोनेशन उस मिल्क बैंक को आने लगा। ऐसे ही गुजरात में यूएन मेहता में जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे इन्फेंट्स का भी कार्डियोलॉजी के ऑपरेशन होते हैं, ऐसा बड़ा अनोखा वहाँ का संस्थान है। उसमें भी जो वहाँ के लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्रिटिकल है, उनकी कार्डियक सर्जरी होनी है, उनकी माताएं वहां बाहर रुकी हुई रहती है, तो लाइक अ रिचुअल वो सब मिल के आती है, जैसे कोई मंदिर जाता है और वहां पे आके मिल्क डोनेट करती है। ये सब बातें सिविल सोसाइटी के पार्टिसिपेशन के सिवा उन पे जो भरोसा हमें लगा कि उनकी समझबूझ, उसके बारे में कोई दो राय न रखते हुए हम जब इसको लेके उनके सामने गए हैं, तो जिस प्रकार के हमारे भारत के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने इसका महत्व समझा है और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया है, तो ये भारत में हर जगह पे इस प्रकार का एक्सेसिबिलिटी जल्दी से जल्दी मिलेगा, ऐसी अभी पूरी सिद्धता हुई है। इसीलिए लाइवलीहुड, हेल्थ केयर और सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन के एक बहुत बड़े जिसको हम कहते हैं कि जो इतिहास हम गिन भी नहीं सकते, गिन भी नहीं पाते, अनुभव समृद्ध ऐसे हमारे समाज पे हमको भरोसा रखना चाहिए, रिसोर्सेस को एनालाइज करना चाहिए, हेल्थ केयर के माध्यम से हो या अन्य किसी क्षेत्र में हो। समाज का सहभाग
ही विकास का सच्चा दायरा है। हमारे यहाँ पे और एक सबसे जो खास बात है कि हमारे कल्चर में, जैसे अभी हमने अनुग्राम की बात की, हम बस यही कह रहे थे कि अगर मेरे कल्चर में मैं ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ पाऊं कि जिसके माध्यम से, ये खाली पर्यटन का विषय नहीं है, लेकिन कंज्यूमेबल गुड्स हो या जिस प्रकार के इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स हमारे यहाँ के संसाधनों से बन सकते हैं, जितनी हमारी भूमि है उससे कहीं ज्यादा हमारे पास समंदर है, और उसके अंदर जो भी उपलब्धियां है उस पे काम करने वाला नया युवा अगर तैयार हो सकता है, तो हम दुनिया भर में हमारे इस ब्लू इकोनॉमी को भी ले जा सकते हैं। ग्रीन इकोनॉमी, व्हाइट इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, हमारे यहाँ पे सब भूमि गोपाल की हम जब कहते हैं तो उसका ही दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि उपजाऊ है, किसी ना किसी प्रकार से भरण पोषण यहाँ के भूमि पुत्रों का ये धरती कर रही है। ये हमारी कल्पना, हमारे साहस और हमारी दूरदृष्टि को मांगता है ये नया भारत, जिसके माध्यम से हम हमारे कल्चरली डेवलप होने का एडवांटेज और दुनिया भर में हमारे संस्कृति को लेके एक प्रकार की जो मोहिनी है उसका पूरा उपयोग करके सही मायने में हमारे यहाँ के संसाधनों को, यहाँ की सांस्कृतिक उपलब्धियों को, और हमारे जो युवा और हमारे जो नागरिक है जिनमें एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सर्वसमावेशक है, सबको लेके चलने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला है, उसको आगे लेके जाने की नीति, यही हमारे लिए सही नीति है। इसमें और एक जो छोटी बात मैं कहना चाहता हूं वो ऐसी है कि कैन इनोवेशन हेल्प। शायद हमारे सबके जहन में ऐसा होगा कि यस, इनोवेशन कैन हेल्प, लेकिन इनोवेशन ऑफ व्हाट? तो सबसे पहली बात है, ये इनोवेशन हमें चाहिए हमारे अप्रोच में, ये इनोवेशन हमें चाहिए जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में है वैसे सोशल इंजीनियरिंग के बारे में चाहिए, ये इनोवेशन हमें चाहिए हमारे हेरिटेज को समझने में और उसको नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के सामने लाने के लिए। ये इनोवेशन हमें जो चाहिए, ये इनोवेशन हम हमारी खुद की जरूरतों को समझ के उस प्रकार के नए नए प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्सपीरियंस क्रिएट करे जो दुनिया भी स्वीकारे। इस प्रकार के ओरिजिनल थिंकिंग अप्रोच और नए जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम बनाएंगे उसके लिए हमारे दृष्टिकोण को लेकर वो हम बनाए, इस प्रकार की एक आवश्यकता अभी आन पड़ी है। आप सभी को अवगत होगा कि तंत्रज्ञान या टेक्नोलॉजी में अगर हम दूसरों पे अवलंबित है तो इसका ही दूसरा मतलब है कि हम एक प्रकार से उनके स्लेव। कौन से स्लेव है? इकोनॉमिकल स्लेव्स। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी किसी और की है तो उस टेक्नोलॉजी पे हमारी बढ़ती हुई डिपेंडेंसी एक ना एक दिन हमें पूरी तरह गुलामी की तरफ धकेल देगी। इसीलिए मेक इन इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, या किसी भी प्रकार का नॉन कन्वेंशनल या कन्वेंशनल प्रोसेस में इनोवेशन, ये हमारी आज की आवश्यकता है। यस, इनोवेशन कैन हेल्प इफ वी लुक एट इट होलिस्टिकली। और सबसे आखिरी बात, हम भारत नीति संवाद के माध्यम से बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी के विषयों पर चर्चा करते हैं, सुनते भी हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर के लोग जहाँ सस्टेनेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अच्छा हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें बस टिक जाए कुछ दिनों के लिए, तो ये तो कोई विकास की, ग्रोथ की, या जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हाई ग्रोथ, इस प्रकार की बात नहीं है। हमको काम करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जैसा इतिहास एक प्रकार से स्वर्णांकित है, उसी प्रकार का भविष्य अगर हमको चाहिए तो हम सस्टेनेबिलिटी की ही बात न करें, लेकिन हम प्रॉस्पेरिटी की भी बात करेंगे तो ये ज्यादा उपलब्धि हमारे लिए होगी। हमारी नीति संवाद में भारत का नाम जुड़ा है, इसी का मतलब हम एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाने वाले हैं। मैं सभी भाइयों का आभारी हूं कि आप इसमें जुड़े और आपने बड़ी सहजता के साथ और संयम के साथ मेरी बातें सुनी। ये मेरे विचार थे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर for enlightening us with this topic, like how we can move forward with the participatory led models, like community led models, and how we can focus on the creativity instead of entering into the systematic whatever is being like governed since independence till today. So this is the same thing, sir. We started from the first lecture. That was totally the Swaraj contextualization in current
decade of 21st century. So the concept is totally, and the second was totally relying on the how we can connect the urban and the rural continuum. Means what sort of the challenges are there, and this is how this theme was being designed related to the healthcare and livelihood models, which is like very important, like how people can focus on the rural and urban challenges which are existing still. Like in when we talk about the like government has launched so many schemes which is totally focused on the upliftment of the community, but again the holistic upliftment is lacking. So that's the reason here comes the role of the Indian epistemological thought when we talk about the, and if we talk about the Indian like yoga concept, or if we talk about the physical forms of the human being. So Panch Mahabhuta and Panch Kosa concept, this comes into play, right? So this is how we can link the traditional knowledge, the Indian epistemological knowledge, with the current modern policy reform, so that we can focus on the upliftment of the holistic upliftment of the community, particularly the rural people and then urban slums people, which are again the subset of the rural community, right? So thank you so much, sir, for enlightening us with this thought, and which is really very provoking for everybody, I think. And if anybody has any question related to this session, so please raise your hand, and sir is ready to answer your questions. Please, anybody from the audience. Raise your hands and you can ask the question by unmuting yourself. Okay. Yes, Anupam, please ask the question. Unmute yourself and then ask. Yes. सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कुछ चीजों को डिस्कस किया है यहाँ पे। फर्स्ट तो ह्यूमन मिल्क बैंक के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, यहाँ पे आपसे पता चला। और मैं जैसे देख रहा हूँ कि एज ऑफ 2021 देयर आर ओवर 90 ह्यूमन मिल्क बैंक्स इन इंडिया। यस सो ये बहुत अच्छा एक चीज है। लेकिन मैं दिल्ली का स्लम चिल्ड्रन को लेके एक रिसर्च कर रहा था। वहां पे मुझे एक डेटा मिला कि वहां पे 80% लोग कॉमन एलिमेंट्स के लिए, मतलब बच्चे को प्राइवेट क्लिनिक्स में ले जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस के बारे में पता नहीं है। तो ये सब समस्या को कैसे दूर किया जाए? इसमें दो प्रकार है। जैसे अभी इंद्रधनुष नाम का हमारा बहुत बड़ा एक वैक्सीनेशन का काम चलता है। तो इतना बड़े पैमाने पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है कि इवन नेपाल, भूटान, ये भी लोग हमसे ही मदद लेते हैं उनका वैक्सीनेशन करने के लिए। अभी जब 80% लोगों को वहां पे पता नहीं है, ऐसा आपने कहा किसी स्लम में, कॉमन एलिमेंट्स के लिए ये जब अगर मोहल्ला क्लिनिक जा रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक में, और जहाँ पे एक्चुअली इसको क्या कहते हैं कि बर्थिंग का प्रोसेस हुआ है, उसमें जो अंतर है कि वहाँ के जो फॉलोअप्स है और उसकी जो प्रोसेस है, ये करने के लिए वो माता बाध्य है, उसको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। वहाँ का जो अपना नेशनल रिसोर्स सेंटर है दिल्ली में,
वो बना है लेडी हार्डिंग में, जो वहाँ पे आपका इसको क्या कहते हैं, बड़ा फेमस एरिया है, गोल मार्केट के बाजू में पड़ता है। न्यू दिल्ली स्टेशन से शिवाजी स्टेडियम के पास में है, कैनॉट प्लेस के वहाँ। तो लेडी हार्डिंग में आने वाला जो तबका है वो आजू बाजू के यानी ओल्ड दिल्ली और स्लम एरिया में से आने वाला है। वहां पे ऑक्यूपेंसी 100% है, एनआईसीयू में भी और उनके जो बेड्स है उसमें भी। तो अवेयरनेस के लिए कौन चाहिए या अवेयरनेस किसके माध्यम से पहुंचेगा? तो आप जानते ही हैं कि भारत में मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। यानी अगर यानी कितने हजार लोगों के पीछे एक मेडिकल प्रोफेशनल है, तो इसका जो रेशियो है वो हर जगह बदलते जाएगा। यानी महाराष्ट्र में अगर अच्छा है तो ये उत्तर प्रदेश में शायद नहीं होगा, दिल्ली में नहीं है, ये मैं आपको बता ही सकता हूँ। जिस प्रकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहां पे है, उन प्राइवेट अस्पताल में हर कोई उठ के जा नहीं सकता है। लेकिन अगर इसमें सिविल सोसाइटी अगर हिस्सा लेती है, तो अभी हमने पुणे में 75 जगहों पे सुपोषित भारत अभियान नाम का एक नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया। और इसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर से लेके ये जो आपने समस्या बताई कि वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, इस प्रकार का सर्वे करके हमने वहां पे डॉक्टरों की टीम भी रखी और हर जगह पे जो भी लैक्यूनास है उसको हमने कंप्लीट करे। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आरोग्य सेवा राष्ट्र सेवा इस एक जिसको क्या लेते हैं स्लोगन को लेके ये डॉक्टर सेवा करने के लिए निकल पड़े और उनके साथ वहाँ के जो सामाजिक संस्थाएं काम करती है, वहाँ की गणेश मंडली है, वहाँ का जिसको क्या कहते हैं कि अंबेडकर हॉल जिसको कहते हैं, वहां पे काम करने वाले लोग हैं, इन सबको इकट्ठा लाके ये हुआ। तो खाली डॉक्टर आने से नहीं होगा। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये समस्या है, हाँ है, लेकिन ये समस्या हल करना ये खाली हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और हेल्थ रिसोर्स पर्सन का काम नहीं है। हमको समझना होगा कि विटामिन बी 12 के वजह से अगर हमारा पड़ोसी रोज गाली गलौज कर रहा है, वो इरिटेटेड है और कोई ऐसे निर्णय ले रहा है कि जो बस विटामिन बी 12 की कमी की वजह से उसके और आजू बाजू के लोगों की जिंदगी का सुकून हर ले रहा है, तो ये कैसे पता चले उसको कि विटामिन बी 12 के 3 इंजेक्शन ले लेगा तो वो भी शांति से जिएगा और हमें भी शांति से जीने देगा? लेकिन ये ना कम्युनिकेट होने के कारण ये हमें लगता ही नहीं है। जैसे हम हर जगह पे कहते हैं कि भारत देश के अंतर्गत और बाहरी सुरक्षा ये हम सबकी जिम्मेदारी है, वैसे ही हमारा खुद का स्वास्थ्य और हमारे आजू बाजू के लोगों का स्वास्थ्य ये हम सबकी इकट्ठा जिम्मेदारी है। ये जैसे एस्टेब्लिश हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम आप जो कह रहे हो ये पूरी तरह से हमारे देश से चला जाएगा। सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन, उसके लिए जो सजगता की आवश्यकता है और जो लोग आगे आके काम कर सकते हैं उनको वहां पे लेके आना, तो ये अवेयरनेस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस देखते होंगे, वहां पे इंग्लिश में पेपर पब्लिश होते हैं कि विटामिन बी 12 का कॉग्निटिव इफेक्ट क्या है। ये कैसे समझेगा भाई? जो स्लम एरिया में वहां पे जो लोग हैं उनको ये कैसे समझ, कौन लेके जाएगा उन तक? मैं भी अभी पूरा इंग्लिश में भाषण झाड़ूंगा और मैं कहूंगा कि भारत नीति सब तक सबके पास पहुंचे, तो ये नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारे कल्चर को हमको भी समझना पड़ेगा, भाषाओं को समझना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। और ये
यानी ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोगों ने कही है कि अगर आपको खुद को सुखी होना है तो प्रार्थना कीजिए कि सब सुखी हो जाए, तो अपने आप भी सुखी हो जाओगे। वैसा ही है, अगर मुझको स्वस्थ रहना है, मुझको स्वस्थ जीवन बिताना है हर प्रकार से, वो स्पिरिचुअल, इमोशनल, हेल्थ वाइज, हर, तो मुझे आजू बाजू भी ये करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में आया, आप इसको लोगों के सामने लाइए। बहुत सारी संस्थाएं इसमें आगे आके काम कर सकती है कि उस स्लम में जाके हर एक को मिलके उनका काउंसलिंग। और इस समस्या यहाँ तक नहीं है कि उनको वैक्सीनेशन मालूम नहीं है, उनको वैक्सीनेशन मालूम नहीं है या किसी भी उनकी ऐसी कोई श्रद्धा है जिसके वजह से वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, तो उसका दूसरा अर्थ ऐसा है कि हम वैक्सीनेशन का जो हमारा पर्पज है कि वो वायरस ना जिंदा रहे, उसी को वो डिफीट कर रहे हैं। तो उनका इसमें पार्टिसिपेशन न होना, वही मैं कह रहा हूं कि अगर सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेटरी मोड में आए या उनको ऐसा अवसर मिले और वो उसको ले ले, तो अपने आप कई सारी समस्या ठीक हो जाएगी। नहीं तो इतने सालों बाद भी हम पोलियो से झगड़ते ही रहेंगे, टीबी का हम पूरा का निराकरण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई लोग वैक्सीन नहीं ले रहे, उनको मालूम नहीं, ये एक वजह है। नहीं तो मालूम है लेकिन उससे दूर रहो, ऐसी एक वजह है। दोनों ही इसमें उनसे बात संवाद करके ही हम ये कर पाएंगे, यही इस पे सॉल्यूशन है, ऐसा मुझे लगता है। Yes, अनुभव से भी मैं बता सकता हूँ कि इस पे सॉल्यूशन है। yes, yes, definitely. It is the perfect solution. We need to like focus on the grassroots level के जितने भी development practitioner पे हम लोग ज्यादा focus करें कि हाँ, these are the people who can be trained and then can focus on the community-led models. So anybody else, please, from the audience? Anybody else has any question, please? So, अनुपम जी, एक ऐसा मुझे आप बताइए कि ऐसा कुछ संभव है क्या, कुछ टूल किट बने कि एक परिवार के लिए जैसे वैक्सीनेशन है उसी प्रकार से, अगर जिसको क्या कहते हैं कि डीवर्मिंग है, या जिस प्रकार से विटामिन सप्लीमेंटेशन है, ऐसा कोई अगर हम टूल किट पब्लिश कर सके भारत नीति संवाद और आपके माध्यम से, तो ये हर जगह हम उसको लेके जा सकते हैं और वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं, तो अपने आप उसमें काम हो जाएगा कि हम लोगों तक पहुंच पाएंगे इसमें। हाँ, क्योंकि आपको जो ऑब्जर्वेशन है आपका एकदम सही है, और एक ही स्लम में नहीं, ऐसा अनेक जगहों पे आपको दिखेगा। किसी भी कारणवश अगर ये हो रहा है तो क्या हम ये बात पहुंचा सकते हैं क्या? ऐसा कोई टूल किट बनाएंगे हम और पहुंचा पाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। right, right, right. Thank you, sir. Thank you for suggestion, valuable suggestion. So, anybody has any question, please, from the audience? So, we again with warm welcome and then thanks for this session, sir. Today, for this was really very enlightening session, and with the valuable suggestions you made today. The community-led model is very important. Participatory governance is very important. So we will focus on this, and we are trying our best. And yes, you are advising us for the urban slum supplement model, which we are planning to execute in the Delhi NCT and the other states of the India. So thanks, Odian, for being here today for this session. And thank you so much, sir, on behalf of the BNSK. And thank you so much, sir, for this today's session, sir. Yes. थैंक यू। Yes, thank you, sir. Thank you so much. So we will end this session today here. Yes.